Hello students, welcome to all of you in Eklavya study classes. In earlier discussion we have discussed about the complex number which is described by z x plus x plus iota y, where x is the real part of the z. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्सप्रेस किया था x प्लस आइटा y, where this x is to be denoted by real part of this complex number and this y is to be denoted by imaginary part of this z. राइट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने वहाँ लास्ट क्लास में रिगार्डिंग आयोटा वी हैव डिस्कस रूट ऑफ दैट हाउ आयोटा इज टू बी एक्सप्रेस whenever the power or the higher power of iota is to be in the question. In case we will convert this power of iota is to be in the power of 4 because iota power 4 is 1. Now today we will discuss some mathematical terms. यहाँ कहा गया add of two complex number, add of two complex number. Suppose one of the complex number is like that is z1 and another is the z2 x2 plus iota y2. The summation of these two complex number, that is x1 plus iota y1 plus x2 plus iota y2. समेशन क्या आता है आपके पास x1 plus x2 plus iota y1 plus y2. This is the z1 plus z2. Now the question is that real part of z1 plus z2 which answer which means x1 plus x2 and आपसे पूछा जाता है imaginary part of z1 plus z2, then the answer is y1 plus y2. समझ में आ गया? Same we will work in the subtraction. Whenever the question is to be arise the product of these two complex number, in case product कैसे होगा? अब आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है z1 प्रोडक्टेड विद z2. सो नाउ x1 प्लस आयोटा y1 प्रोडक्ट विथ x2 प्लस आयोटा y2. जब प्रोडक्ट करेंगे तो x1 का उस होल ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट होगा, आयोटा y1 का भी उस होल ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट होगा जैसे आप प्रोडक्ट करते रहे हैं. Now this x1 is to be producted with x2 as well as iota y2, same this is to be producted with these two term. Now this product we are getting iota x1 y2 plus iota y1 x2 plus iota square y1 y2, और आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ आयोटा दैट इज इक्वल टू द -1. So now this is to be expressed again iota x1 y2 plus iota y1 x2 minus of y1 y2. Now from which we will separate the real terms that are like that plus of iota x1 y2 plus x2 y1. Now this is the product of z1 z2. From where if the question is that what is the real part of z1 z2, तो आपको क्या करना है, इसका रियल पार्ट क्या है वो लिख देना है. और अगर आपसे पूछा जाता है इमेजनरी पार्ट क्या है, यहाँ कहा जाता है इमेजनरी ऑफ z1 z2, तो आपका आंसर हो गया x1 y2 प्लस x2 y1. और अगर आपसे कहा जाता है रियल ऑफ z1 z2 बताओ क्या है, देन यू विल राइट x1 x2 माइनस y1 y2. राइट है. तो स्टूडेंट्स प्रॉपरली चीज़ों को क्लियर रखें. द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेम केस व्हेन एवर दो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इन केस इनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, इनके इमेजनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, और वी कैन से x1 इक्वल x2 एंड y1 इक्वल y2. राइट है. Whenever the two complex number are equal, then their real part of this is to be equal, also their imaginary part also equal. So this concept is being used to treat some of the question. If the question is to be like that, suppose the one of the question is given that is 3 plus iota 4. What is the x and y? तो आप क्या करें, दोनों इक्वल है, डायरेक्टली वी कैन राइट शो y equal 4. So on behalf of the
equivalency of the two complex number, you can write their real part should be equal and their imaginary part are also equal. Now suppose one of the complex number is given और हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका z1 is given to 1/z1, that is the मल्टी. पहले 1/z1 कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार क्या होगा. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड whenever iota comes in the denominator you always be क्या करते हैं रेशनलाइजेशन. तो रेशनलाइजेशन कैसे होगा, सेम केवल साइन चेंज करना आपको, अपसाइड डाउन साइड प्रोडक्टेड. दिस इज नाउ द रिजल्ट वी आर गेटिंग दैट इज x1 माइनस आयोटा y1 ओवर प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा x1 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y1 स्क्वायर. रेस्ट टर्म विल बी कैंसिल्ड. Now it should be separated and it will written like that x1 plus y1 square plus iota minus of y1 over x1 square plus y1 square, right? This is the 1/z1 which is represented by 1/z1, right? जिसको अभी हम यहाँ कहेंगे टर्म नेम देंगे इसका रियल पार्ट, दैट इज़ द रियल पार्ट, दैट इज़ इमेजनरी पार्ट. तो इसको क्या कहा गया, 1/z1 का जो आपने 1/z1 किया तो 1/z1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट. 1/z1 किसका है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, ऑफ z1, राइट है. तो कैसे आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्क्राइब कर दिया, whenever z1 is to be producted with multiplicative inverse then the multiplicative identity, this is the inverse, ध्यान रखना multiplicative inverse. और यहाँ मैंने I लिखा that is the identity. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है z1 को किससे प्रोडक्ट करें, दैट इज द क्वेश्चन मार्क विच इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, z1 को किससे प्रोडक्ट करें कि रिजल्ट कितना आए, 1 आए. तो z1 को किससे प्रोडक्ट करेंगे, 1/z1 से, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा. दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z1, राइट है. अब कह रहे हो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी. तो एडिटिव इनवर्स सेकेंड कंसेप्ट पे चलते हैं, वही z1 है सेम आपके पास, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट वी हैव डिस्कस. नाउ मल्टीप्लिकेटिव की जगह अब क्या हो गया, एडिटिव. एडिटिव आइडेंटिटी वो तो क्या होती है 0 और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो होता है माइनस ऑफ एनी नंबर जो भी आपको दिया गया है, माइनस लग जाएगा उसका. ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1, ठीक है. मीनिंग एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग हो गया कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. सेम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, क्वेश्चन जो भी दिया गया उसमें अगर 0 ऐड कर दो तो क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए. तो दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज एडिटिव इनवर्स. तो सपोज द z1 इज गिवन, तो हमें कहा गया कि z1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताओ. तो वो जब हम कह रहे हैं राइट साइड क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी. तो एडिटिव इनवर्स z1 में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 आए. इट मीन्स दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज द एडिटिव इनवर्स, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट है. तो आपसे पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स मीनिंग माइनस करके लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उसका रेसिप्रोकल करके रेशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाइड करके आंसर देना है. क्लियर है सबको दिमाग में. अब आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय बार, z बार, जिसको हमने कहा ना z1/z1,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z1 बार। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के बार से प्रोडक्ट कर दें z और z बार, तो ये रिजल्ट क्या आता है, तो ये अभी आप करके देखेंगे। z बार अलग एक टर्म्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट z बार, ध्यान रखना ये थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग लिखा गया, इसको प्रॉपर्ली ध्यान रखें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z और z बार इज कॉन्जुगेट, z बार इज कॉन्जुगेट, CONJUGAT, कॉन्जुगेट ऑफ z। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, इफ z इज x प्लस आइटा y, तो z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट मीनिंग आपको इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव कर देना है, राइट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज द 1/z which is to be simplified by rationalization, but this is the conjugate of z which is expressed only the part of imaginary that should be making negative first. Clear? Now one of the identity that we have described here, z into z bar, that is x plus iota y producted with x minus iota y. Now when we product this is 2 square plus this is square, and one term that we have described here, if z is x plus iota y, so magnitude of z, this is magnitude of z, and this magnitude of z is to be expressed by root of real of z whole square plus imaginary of z whole square. If z is this, then the magnitude of this z of this magnitude is to be expressed by x square plus y square, and the magnitude of z whole square is expressed by x square plus y square. Now this z bar is equivalent to the property that is described magnitude of z whole square. To clear all of one, whenever a complex number is producted with its conjugate, the result is to be square of the magnitude of this complex number. Clear? Now come on next part. Suppose one of the question is there, 5 plus root 2 iota over 1 minus root 2 iota, and the question is express in form of a plus iota b, express in form of a plus iota b. क्या करना है, first we will make simplify to product by rationalization of the denominator, z 5 plus root 2 iota minus this product with, किससे प्रोडक्ट करोगे, आयोटा जो पार्ट है उसका अपोजिट साइन करके अप साइड डाउन साइड प्रोडक्ट करना है। नाउ द रिजल्ट इज, अभी आपने कहा था this 5 is product with both of them, this root 2 iota is product with both of them. Now the result is, so upside we will write here 5 multiply 1 plus root 2 iota plus root 2 iota product with 1 plus root 2 iota. Downside one of them is in plus, one of them is negative, that we have already producted 1 plus root 2 square, that is 4, right. So now upside what we are getting, 5 plus 5 root 2 iota plus iota root 2 minus of 2, because root 2 that is 2 iota square minus 1, then minus 2 over 5. Again it should be written, then these are the numbers which is to be written 5 minus 2, and it is written 3, and there are both the terms are of iota.
So we will take iota is common, and this is the 6 root 2 over 5, which again express like that. This is the form of a plus iota b. So students, 3 plus 6 root 2 iota over 5. 1 plus 2. There is a mistake. Root 2 is 2. Then it comes 2. ठीक है? So there is 3. Again there is 3. Again there is 3. So you can simplify it also. The result is 1 plus iota 2 root 2. This is the simplification of this question. तो आपको कहा गया एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? 2 माइनस 3 आयोटा. z दैट इज इक्वलेंट 2 माइनस 3 आयोटा. इसका आपको mi कैलकुलेट करना है. मैंने mi के लिए क्या कहा? mi ऑफ z इक्वल 1 अपॉन z. इट मीन z इज टू बी प्लेस्ड हियर. रेशनलाइज करोगे, साइन केवल आयोटा का अपोजिट करोगे, प्रोडक्ट करोगे. अप साइड 1 से प्रोडक्ट है, डाउन साइड 4 प्लस 9 हो जाएगा. दोबारा राइट करोगे, देन दिस विल बी सेपरेटाइज करोगे, प्लस 3 अपॉन 13 आयोटा. सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज टू बी सेपरेटेड. दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अंडरस्टूड गाइस? Properly do in your copy this exercise 1. Now magnitude we have discussed. One of the question is there, minus of iota. Multiplicative inverse of minus of iota. This is the question of exercise. So this z is to be expressed minus iota, which is equivalent, right, आयोटा माइनस 1. राइट है? कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम. ठीक है. दिस इज आयोटा. नाउ क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो 1 अपॉन z कैलकुलेट करना है आपको. तो यहाँ माइनस आयोटा है, तो आप क्या कर लें? माइनस को अगर फ्री रखें तो कोई दिक्कत नहीं है. आयोटा से अपसाइड डाउन साइड प्रोडक्ट कर लें. तो अप साइड आ गया आयोटा, डाउन साइड आ गया आयोटा स्क्वायर. -1 और माइनस इज देयर, देन इट इज टू बी +1. So this multiplicative inverse is to be expressed iota 1. This is the mi of z. ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड हो, पर आपको प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है. वर्क अगर आप प्रॉपर करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबिलिटी टू डेवलप द any problem. And magnitude that we have discussed, suppose one of the complex number is given, that is z, which is equivalent to the 2 minus 3 iota. This z is given, suppose 2 minus 3 iota. और आपसे पूछा गया, this is the magnitude of z, or sometimes it is to be also known as modulus of z. ठीक है? both of them are same. तो magnitude of z आपको कैलकुलेट करना है. किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? अभी आपको कहा गया था if the z equal x plus iota y, which implies magnitude of z क्या होता है? रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर. तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या हुआ? ठीक है? रियल ऑफ जेड कितना है? स्क्वायर ऑफ 2. इमेजनरी ऑफ जेड कितना है? -3. प्लस में कन्वर्ट करके राइट कर लें. ठीक है? आयोटा माइनस ऑफ 3. सो दिस इज नाउ स्क्वायर इज ओपन. 4 + 9, देन द सम इज 13. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड. स्टूडेंट्स
प्रॉपरली जो जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई है, क्या क्या चीज़ें बताई गई, इनके बाद ब्रीफिंग हम लोग ले लेते हैं। तो हम आपको सबसे पहले हमने कहा अगर आयोटा की हायर पावर्स को एक्सप्रेस करने का टर्न आता है तो आपको क्या करना है, आयोटा को पावर 4 में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आयोटा पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। हमने कहा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इन एन एग्जाम्पल इफ इट इज़ गिवन और डिनोमिनेटर डाउन साइड इज टू बी आयोटा, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। इन द रेशनलाइजेशन यू जस्ट change the sign of iota whichever in the denominator, so that should be produced with the numerator as well as denominator. Now we will change in the form of x plus iota y, and separation of this is to be expressed real part of z and imaginary part of z. Now हमने कहा आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन and the multiplicative inverse is always calculated by the given z, that is to be expressed 1 upon z. So next, additive inverse that we have expressed, if the z is given then additive inverse is expressed by minus of the z. Next we have conclude the conjugate. If the conjugate is to be asked in question, then the z is given. So the conjugate is expressed by, if the z is expressed iota y, then its conjugate is expressed by x minus iota y. It means the part of imaginary of z is to be with the opposite sign in its conjugate. Now last we have discussed the magnitude of the z, that is defined by root real part of z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये थिंग्स जो आपने समझी है वो प्रॉपरली पढ़ें, अपनी बुक को फॉलो करते हुए। जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं इन 13.1 एंड 13.2 रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, दिस इज टू बी आल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर वर्क करना है। 13.2 में सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड that you also start for solving, and the higher power of iota that is also for solving. So guys, do properly these questions in a proper manner. आपकी 13.1, 13.2 such of the question that is to be expressed, there is written magnitude जिसको कहा गया मॉडुलस 5.2, ठीक है, और कुछ में कहा गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो प्रॉपर आपको करना है। स्टूडेंट्स जो भी वर्क आपको ड्यूरिंग वीडियो लेक्चर्स दिया जा रहा है अपने नोटबुक में प्रॉपर करते रहें। whenever the school will be reopen after COVID exemption, so these works should be evaluated. So this time some of the students are excuses that I have not done, that should be not tolerable. So again advice to all of the students, do regular with their work in their notebook. Whatever is given in the video, you should follow him or her. Thank you very much.